Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well at your homes. Today is our lecture number 15, unit number 2, exercise 2.1. Here we have question number 3. Which of the following statements are true and which are false? Part 1. 2 by 3 is an irrational number. You know that rational irrational numbers 2 by 3, the numbers which can be written in the form of p by q, these are called rational numbers, not irrational. So this is false. Part 2. Phi is an irrational number. You know that phi is irrational number, so this is true. Part 3. 1 by 9 is a terminating fraction. So when we divide 1 by 9, we get the answer 0.111. So it means it's recurring fraction. It's not terminating. So this is wrong. So it's false. Move on. 4. 3 by 4 is a terminating fraction. When we divide 3 by 4, we get the answer 0.75, which is terminating. It's not infinite. So this is true. Part 5. 4 by 5 is recurring fraction. When we divide the 4 by 5, we get the answer 0.8. So it's terminating, not recurring. So this is false. Okay, now move on. What is number line? Number line looks like something like this. This is called number line. Positive integers are represented towards right of the zero and the negative integers are represented toward left of the zero. The number increase when we move towards right and decrease when we move towards the left. It is easy to plot integers, but how do we plot the numbers? Like 3 by 4. Before plot this, we need to understand very crucial point. Every integer except 0 has a corresponding integer. For example, 1 has integer -1 as its corresponding integer, and 2 has -2 integer as its corresponding integer. Similarly, every negative integer has its corresponding positive integers. नंबर लाइन में जो 0 होता है वो हमारे पास सेंटर में होता है. राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और लेफ्ट पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं. हर वैल्यू का एक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है. फॉर एग्जांपल 1, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी -1. सिमिलरली 2, तो इसकी जो नेगेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो होगी -2. ओके, a number line is simply a representation of ordering of real numbers. Usually we mark 0 in the middle, the negative integers on the left and the positive integers on the right. The arrow indicates that the line keep on going in both directions. जो arrow हैं वो ये indicate करते हैं कि जो हमारी values हैं वो दोनों तरफ increase हो रही हैं. It's infinite. Okay, now move on. Question number 4. Represent the following numbers on the number line. So here we have fraction -4 by 5. This is a rational number. So when we divide -4 by 5, it will equals to -0.8. And this is your answer, -0.8. Now how we can plot this on number line? Because यहाँ पे हमारे पास जो साइन है वो नेगेटिव का है, तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव साइड पे हम इसे ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव साइड पे इसे ड्रॉ नहीं करेंगे. तो जो इसका इंटरवल होगा, हमने डिवाइड इसलिए किया है 4 को 5 से कि हम ये देख सकें कि इसका इंटरवल कहाँ है, कौन सी दो वैल्यूज के सेंटर में लाई करेगी. तो जब हमने इसको डिवाइड किया हमारे पास आंसर आया 0.8. इट्स मीन कि ये 0 और 1 के इस इंटरवल के दरमियान ये लाई करेगी. अब 0 से -1, अब क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 है, तो आप इस 0 और -1 के दरमियान 5 इंटरवल मार्क कर लें. 5 इक्वल मेजर करके 5 निशान लगाएं. 1, 2, 3, 4 एंड 5.
अब ये जो है 4/5 है, मतलब आपने 5/5 में से 4th जो पॉइंट है उसको आपने मार्क कर देना, वो आपका होगा -4/5। 0 से -1 के दरमियान ये आपका जीरो जो इंटरवल है -4/5 ये लाई करेगा 0 से -1 के सेंटर में ये लाई करेगा। इस इंटरवल के दरमियान ये पॉइंट जो है हमें मिलेगा, और करना ये है कि आपने इसको डिवाइड करके 0.8 आंसर आया, हमें इससे इंटरवल पता चला। अब 5, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर 5 है, तो हम 0 से -1 के जो दरमियान का इंटरवल है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और जो उन 5 इक्वल पार्ट्स में जो 4th वाला पार्ट होगा उसको हम हाईलाइट कर देंगे, वो हमारा -4/5 होगा। Okay, now here we have part 4, -2 whole 5/8. It's mixed number. First we convert it into fraction. Fraction में हम क्यों convert करेंगे? इसलिए convert करते हैं कि पहले हमें पता चल जाए इसको divide करने के बाद कि हम जो वैल्यू है वो किस इंटरवल के दरमियान लाई करेगी, किस इंटरवल के दरमियान हम उसे मार्क करेंगे। सो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे 8 × 2 = 16। नाउ ऐड 5, सो वी गेट -21/8। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रैशनल नंबर। अब इसको जब हम 21 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो वी गेट -2.6। इट्स मीन इट लाइज बिटवीन -2 एंड -3। ये -2 और -3 के, क्योंकि 2.6 है, 2 से बड़ा है, बड़ी वैल्यू है, और 3 से छोटी है, तो द इंटरवल ऑफ द वैल्यू 2.6 बिटवीन -2 एंड -3। -2 और -3 के दरमियान इसको हम लाई करेंगे। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास 8 है। इट्स मीन कि -2 और -3 के सेंटर में हम इसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारे पास 5 है। जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू है तो वो उसमें न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर 8 है। हमने 2 और 3 के सेंटर में 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद 5th जो पार्ट होगा वो हमारा 8 में से 5th जो पार्ट होगा वो हमारा ये पॉइंट होगा -2 whole 5/8। Okay, here we have part 6, √5. This is an irrational number. So अब इसको जो हम प्लॉट करेंगे, हमारा मेथड इरेशनल और रैशनल के लिए चेंज होता है। इरेशनल नंबर अंडर के जो नंबर्स होती हैं, जो अंडर वैल्यूज होती हैं, उसको हम कैसे प्लॉट करते हैं, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से पहले सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको प्लॉट करेंगे। सो पॉइंट P रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर। अब पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square। ये हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब क्योंकि बिकॉज हमारे पास जो वैल्यू है वो √5 है, तो हमने 5 बनाना है। 5 हम अब 5 कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें स्क्वेयर है। अब हमने इसको कैसे बनाना है कि जो हमारी बेस है उसको अगर हम क्योंकि 2 का स्क्वेयर जब हम लेंगे 2 2 ज़ा 4, और 1 का स्क्वेयर लेंगे 1 1 ज़ा 1, तो हम दोनों को जब हम ऐड करेंगे 4 और 1 को, तो 5 बन जाएगा। इट्स मीन कि अगर हम एक वैल्यू लेते हैं 4 और दूसरी 2 और दूसरी हम 1 लेंगे और उनका स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास √5 आ जाएगा। अब इट्स अप टू यू कि आप बेस 2 लेते हैं और परपेंडिकुलर 1 लेते हैं। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। आप अगर आपने बेस 1 लेनी है, बेस 1 ले लें, और परपेंडिकुलर आप 2 ले लें। सिमिलर अगर आप बेस को 2 लेना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो बेस होती है वो जब भी हम इस फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जो बेस होती है वो हमारी ग्रेटर होती है। तो इट्स मीन कि हम जो बेस है वो यहाँ पे 2 लेंगे, और परपेंडिकुलर जो है वो हम यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे। सो 2 square is equals to 4 and 1 square is equals to 1. So add 4 and 1 equals to 5. So अब इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, पॉइंट 0 से आपने 2 यूनिट्स मार्क किया, पॉइंट A, दिस इज बेस, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज बेस। ठीक है, अब आपने यहाँ से 1 यूनिट आप स्केल से मेजर कर लें, या वैसे नॉर्मली हम स्केल से मेजर कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट ही मेजर करें, आपने जस्ट ड्रॉ करना है। तो आप इसे स्केल से, बेशक ज़रूरी नहीं है 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट तो बहुत छोटा है। आप 2 यूनिट के 2 स्केल से 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कंसिडर कर लें। तो आप क्योंकि 1 यूनिट की अगर आप 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो तो बहुत छोटी होगी। दिस इज यूनिट। आप 2 सेंटीमीटर को भी
1 यूनिट कंसिडर कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 जो है 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कंसिडर किया है। सिमिलरली नीचे भी जो मैंने बेस हम ड्रॉ करेंगे, आप 2 सेंटीमीटर्स को 1 यूनिट, उसके बाद अगेन आगे 2 सेंटीमीटर्स को आप 2 यूनिट कंसिडर कर लें। सो अब यहाँ से पॉइंट ए से आपने 1 यूनिट मार्क लाइन ड्रॉ करनी है। पॉइंट बी को आपने मिलाना है पॉइंट ओ से, पॉइंट बी को ज्वाइन करें पॉइंट ओ से। अब पॉइंट ओ पे आपने कंपास रख के जो डिस्टेंस आपके पास ओ और बी का आया है, ओ और बी का डिस्टेंस आपने कंपास से मेजर करना है और आपने यहाँ पे ए पे ओ पे रख के यहाँ आर्क लगा देनी है, बी पी आर्क। सो ये पॉइंट पी जो है जहाँ पे ये टच कर रहा है नंबर लाइन को, दिस इज √5, दिस इज योर पॉइंट √5। ये आपका वो पॉइंट है जो आपने ड्रॉ करना था नंबर लाइन पे। अगेन पहले आपने ओ और ओ से ए 2 यूनिट आपने डिस्टेंस लिया, लाइन ड्रॉ की, उसके बाद अगेन आपने ए बी 1 यूनिट, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाया है पाइथागोरस थ्योरम उसमें हमने बेस को कंसिडर किया है 2 और परपेंडिकुलर को हमने कंसिडर किया 1 यूनिट। ठीक है, सेंटीमीटर्स नहीं है, जस्ट यूनिट है। आपने 1 यूनिट, फिर आपने ए और बी को 1 यूनिट मेजर करके लाइन मार्क की, बी को ज्वाइन करना है ओ से, और ओ बी कंपास की हेल्प से ओ बी का जो डिस्टेंस है उसको मार्क करके ओ पे रख के आपने आर्क ड्रॉ करनी है बी से नीचे नंबर लाइन तक, और ये आर्क जहाँ पे नंबर लाइन को टच करेगी वो आपका पॉइंट होगा √5। दिस इज योर पॉइंट √5। So this your homework is question number 3 and question number 4 of exercise 2.1. You have to do these questions on your journals. Thank you.